Welcome to Edura's free live classes. My name is Girish Kumar Jain. I am your mathematics mentor. So, today we are going to start the new chapter whose name is coordinate geometry. So, basically in this chapter we will discuss about the lines. So, let's start the chapter. Before starting, we are introducing about the Edura. So basically Edura app covers the classes from 6th standard to 12th standard, where we offer the courses like IIT JEE, NEET, competitive exam and many more. So now in this chapter we will discuss about the points. So first of all, we are discussing the concept of the coordinate geometry. So first of all, in coordinate geometry, we are discussing the concept of pair of linear equation in two variables. So first of all, moving towards the concept of the pair of linear equation in two variables. Now, the pair of linear equation in two variables covers four different words. The first word is pair. The second word is linear. The third word is equation. And the fourth one is variable. So basically students, जो ये चैप्टर है ये चार बेसिक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड, अगर हम बात करें वेरिएबल्स, तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. सो वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज विच आर वेरी, मींस जिनकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल. वेरिएबल के कनेक्शन में ही हम एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है कांस्टेंट. So constant are the values which have a fixed value. It means for an example, अगर हम बात करें 1, 2, 3 and so on, so ये सब values constant. and अगर हम बात करें similarly x, y and z, तो इन सभी values को हम variables की form में लिखते हैं. Now the second point is what is the meaning of equation. So basically equation is a relation between two expression. अगर हम easy language में कहें, if we equate polynomial to be zero. Now polynomial is already discussed. Polynomial is a algebraic expression like 4x square plus 3x minus 2 is equal to 0. This is a polynomial. Or when we equate this value to be, so this combined thing becomes an equation. So basically equation का meaning होता है जब हम दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं तो वो पूरा एक्सप्रेशन जो बन जाता है वो बन जाता है इक्वेशन. सो द फर्स्ट वर्ड इज वेरिएबल, द क्वांटिटीज विच हैव नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू. द सेकंड पॉइंट इज इक्वेशन. इक्वेशन इज व्हेन दो two mathematical expression have a relation of equal. Now what is the meaning of linear. Linear is a word which is related to the power of variables. For an example, if we are considering 4x square plus 3x minus 2, this is a expression when we equate it with 0. So basically ये एक इक्वेशन बन जाती है. Now अगर हम यहां बात करें वेरिएबल्स क्या है तो आप कहेंगे कि सिंगल वेरिएबल है वो है x. और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए x की हाईएस्ट पावर क्या है तो आप कहेंगे यस x की हाईएस्ट पावर 2 है. तो इस पावर का लीनियर वर्ड से क्या कनेक्शन है. सिंपल, लीनियर का मतलब होता है कि जब एक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हो उन सभी की जो पावर है वो 1 हो तो उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन. और बेसिकली पेयर के बारे में आप सभी जानते हैं
कि जब दो थिंग्स को हम कंबाइनली डिस्कस करते हैं, टू थिंग्स को कंबाइनली पढ़ा जाता है, तो वो बन जाता है पेयर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? फर्स्ट पॉइंट इज, हम यहाँ दो वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज, उनके बीच में एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन लीनियर होगी, और यहां पर हम उस लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे पेयर की फॉर्म में। सो a pair of linear equation in two variables are a pair of linear equation which is in two variables. Simply यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स x और y का यूज करेंगे। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो अगर 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाती है हमारी वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y, दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो है 1, तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर मैं कंबाइनली एक और इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, तो अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और जब हमें इन दोनों को कंबाइनली स्टडी करना पड़ेगा तो ये बन जाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ हम यहां पर सबसे पहले इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, और लास्ट में हम आपके डाउट सेशन भी लेंगे। जो भी आपको डाउट है आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम वन बाय वन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी जो जनरल फॉर्म बन जाती है वो बन जाती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पे सिंगल वेरिएबल है x, और इस वेरिएबल की जो पावर है वो है 1, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ द सेकंड पॉइंट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगेन अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो ये बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल x एंड y का हमने यूज किया है, और इन दोनों की जो पावर है x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल गाइज? यस, टू वेरिएबल्स। तो ये बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 1 से ज्यादा लाइंस की इक्वेशंस लेनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली डिस्कस करेंगे तो ये बनेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स की भी बात करनी है तो हम ये कहेंगे कि हम z का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। तो बेसिकली गाइज वेरिएबल्स, इक्वेशन एंड लीनियर, ये तीन वर्ड है जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमने पहले ये समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की, जो कि इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सो बेसिकली गाइज जहां भी सॉल्यूशन वर्ड आता है तो आप सभी के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, जब ये सॉल्यूशन वर्ड उसके आगे लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हमें उन वेरिएबल्स जो उस
इक्वेशन में यूज हुए, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे फाइंड आउट का मतलब क्या है? तो बेसिकली गाइज, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। चलिए इससे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -1/3। और ये -1/3 क्या कहलाएगा? यस, दिस -1/3 बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि -1/3 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। चलिए अगर यहां पर देखा जाए तो हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं? यस, हमने एक सिंगल वेरिएबल x का यूज किया है। तो हम ये कहेंगे कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो उसका हमें पर्टिकुलर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। x की वैल्यू -1/3 के अलावा कुछ भी होगी तो वो पर्टिकुलर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमने इस पॉइंट को समझा कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। नाउ हमें बढ़ना है हमारे चैप्टर की ओर, तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो अब यहां पर टू वेरिएबल्स की बात करनी है तो हमारा जो एग्जांपल होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? यस, x एंड y। तो हमें सॉल्यूशन की बात करनी है तो मैं x को भी कैलकुलेट करना होगा और हमें y को भी कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी वो x एंड y दोनों की होगी। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 अज्यूम करता हूं तो y मुझे यहां से मिलेगा -3। जब हम x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और y बिकम्स -3। जब हम x को 1 लेंगे तो y बनेगा -15/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब हम x को एक अलग वैल्यू से वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी? y की। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम x को एक वैल्यू अज्यूम करेंगे तो हमें y उसके रेस्पेक्ट में मिलती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो 1 2 नहीं, वो होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर हम x को बदलेंगे तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन चैप्टर है जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब हम बात करेंगे 3x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ अगर हम एक और इक्वेशन 5x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इन दो बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सिस्टम और हमें इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन का मीन क्या है? सो गाइस, मीन का मतलब वही कि जब भी सॉल्यूशन वर्ड आएगा तो हमें वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर वेरिएबल x और y इक्वेशन 1 में भी इस्तेमाल हो रहा है और इक्वेशन 2 में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब हमें वो कॉमन x और y फाइंड आउट करने होंगे, इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब ये एक डिपेंडेंट कंडीशन हो गई कि x और y जो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है वो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशंस बनेगी। तो यहाँ पर हो सकता है हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिले, हो सकता है कि सारी वैल्यूज जो x और y की इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी
वो इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। और थर्ड सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि जो x और y हमें इक्वेशन 1 से मिल रहे हैं वो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई ही ना करे। तो यहां पर हमें 3 डिफरेंट टाइप की कंडीशंस मिलेगी। पहला, हमें एक सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है जो कि दोनों पर्टिकुलर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। और थर्ड सिचुएशन, हमें x और y की कोई वैल्यूज ही ना मिले। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूज x और y की इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है वो इक्वेशन 2 को नहीं कर रही। तो इस तरह की हमें 3 सिचुएशंस यहां पर मिल सकती है। अब इन 3 सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन हमें बतानी है ये डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। तो अब हम जा रहे हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ जहां हमें बात करनी है क्या, हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस तरह से हम उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या फिर वो नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन हो। गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो अप्रोच यहां इस्तेमाल करते हैं वो होती है ग्राफिकल अप्रोच। तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम बेसिक तरीका, बेसिक मेथड जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्राफिकल। अब ग्राफिकल अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पहले एग्जांपल में सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत भी, स्टार्टिंग भी वहीं से की थी जहां हमने सबसे पहले पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम यहां सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से प्लॉट किया जाता है, किस तरह से हम उसकी ग्राफिंग करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाया जाता है। चलिए हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। चलिए बेसिकली ये एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स। अब हमें इसके ग्राफ की बात करनी है। तो बेसिकली ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो ग्राफ का मतलब होता है गाइस प्लॉटिंग ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लॉटिंग ऑफ द सॉल्यूशन। प्लॉटिंग ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के मिलेंगे उन्हें हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हमें जो पिक्चर मिलेगी, जो सिचुएशन मिलेगी, वो बन जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ। और बेसिकली आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ भी रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यस यू ऑल आर राइट, वो होता है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हमें पता है कि इसका जो ग्राफ आने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यस हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 पॉइंट्स की। अब 2 पॉइंट्स मतलब 2 सॉल्यूशन, मींस x और y की 2 डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ सिंपली क्या किया, हमने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 को सिंपली लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और हमें x और y फाइंड आउट करने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने सिंपली अज्यूम कर लिया व्हेन x इज इक्वल टू 1 सो y बिकम्स 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो हमारा पास जो सॉल्यूशन आया वो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। और जब हम इसकी प्लॉटिंग की बात करेंगे तो वो एक पॉइंट 1,3 की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली हमने x को 3 एज्यूम किया, तो जब हम x को 3 एज्यूम करेंगे तो हमें y क्या मिलेगा, यस y बन जाएगा 3 प्लस 2, जो कि इक्वेट करने के बाद
5 बनेगा। तो यहां से जब हमने x को लिया 3 तो y बनेगा 5। तो ये जो पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा 3,5। तो जब हम इसे टेबुलर फॉर्म में प्लॉट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 1 पे y 3 मिल रहा है, y की वैल्यू 5 पे x 3 मिल रहा है। तो हमें वो दो पॉइंट्स मिल चुके हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे ग्राफ को बनाने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो बेसिकली हमने ये ग्राफ पेपर लिया। इस ग्राफ पेपर के बाद हम बात करेंगे इसको किस तरह से प्लॉट करना है। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जो यहाँ पर 1,3 आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे x है 1 और y है 3। सेकेंड पॉइंट आपको 3,5 दिखाई दे रहा है, और ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेकंड पॉइंट है 3,5 ये भी उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आगे एक्सटेंड करने पे हमें डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो -2,0 एक पॉइंट है जो कि इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, नाउ इस तरह से हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली जब भी हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं 2, और उन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बात करनी है ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन लेनी है और वो होगी लीनियर इक्वेशन। तो हमने एज्यूम किया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वो हमारी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, this is a linear equation in 2 वेरिएबल। अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है गाइस? यस, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, जिसे हम L1 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? यस, अगेन वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, जिसे L2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली इक्वेशन है लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड इक्वेशन है वो भी एक पर्टिकुलर लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जब हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सिंगल प्लेन में 2 डिफरेंट लाइंस मिलेगी। अब अगर हमें 2 लाइंस मिल रही है, इफ वी गेट 2 लाइंस, सो व्हाट आर द सिचुएशंस? इमेजिन इट, yes, 2 lines can be intersect each other, 2 lines cannot be intersect. Okay, so basically जब 2 लाइन की ग्राफिकल सिचुएशन देखी जाएगी तो हमें L1 L2 कुछ इस तरह की मिल सकती है, जहां पर वो एक पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। सेकेंड पॉइंट L1 और L2 दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, और तीसरी सिचुएशन L1 और L2 एक दूसरे पे कोइंसाइड कर सकती है। तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशन, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस वाली सिचुएशन, और ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस वाली सिचुएशन। अब अगर हम इसे ग्राफिकली एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना चाहें तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस
1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. अगेन हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी गई है. इसका मतलब अगर कंबाइंड फॉर्म में हम बात करेंगे तो ये बन जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो नाउ वी आर सॉल्विंग x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे हमने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 which is equation 2. Now, if we want to find the graph of equation first, we all know the graph will be a single straight line. And to draw the straight line, we require 2 points, means 2 solutions. So simply, we are making a table where x and y are the values which satisfy the equation 1. And in this table, x and y are the values which satisfies the equation 2. Now, when we assume x is equal to 0, so we get y is equal to 1. And when we assume x is equal to 4, we get simply y is equal to 5, because here y becomes x plus 1. So here we get two values of x and y, say point A and point B, where point A is what? Point A is 0,1 and point B is 4,5. Okay. Similarly, for second situation, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Here we get 2y is equal to 12 minus 3x. Y becomes 12 minus 3x upon 2. So when we assume x equal to 0, we get y is equal to 6. When we assume x is equal to 2, we get y is equal to 3. Again, we get 2 points C, which is 0,6 and D 2,3. So यहाँ हमने 2 पॉइंट्स इक्वेशन 1 के लिए कैलकुलेट किए और 2 पॉइंट C हमने इक्वेशन 2 के लिए कैलकुलेट किए. चलिए अब इसे हम ड्रॉ करते हैं. तो जब हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी ए और बी को मिलाने के बाद, जो कि इस तरह की होगी, जिसे हम बोल सकते हैं लाइन L1. और जब हम लाइन L2 को ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कुछ इस तरह की होगी. पहला पॉइंट था हमारा -1,0, सेकेंड पॉइंट था हमारा 4,0, थर्ड पॉइंट था हमारा पॉइंट सी जो था हमारा 4,0 एंड पॉइंट डी था हमारा 0,6. और जब हमने इसे ग्राफिकली देखा तो हमें क्या मिली लाइंस? यस, हमें हमारी सिचुएशन फर्स्ट मिल जाती है. इसका मतलब L1 एंड L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है. अब इंटरसेक्ट कर रही है वो भी एक सिंगल पॉइंट. अब ये सिंगल पॉइंट जब हमने कैलकुलेट किया तो वो होता है 2,3. तो हमें यहां से एक वैल्यू मिली 2,3, जो कि उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था. अब अगर हम इस पर रिसर्च करें कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले ये 2,3 जो है वो लाइन L1 पे भी प्रेजेंट होगा और लाइन L2 पे भी प्रेजेंट होगा. तो L1 L2 दोनों पे प्रेजेंट होगा तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ये दोनों का ही सॉल्यूशन होगा. तो अगर ये दोनों का ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये उनका कंबाइंड सॉल्यूशन है. इसका मतलब हम ये कहेंगे कि L1 और L2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली 2,3 मिल गया. ठीक है गाइज, तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से दो लाइंस, दो इक्वेशन को सॉल्व हम कर सकते हैं ग्राफिकली. चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं. तो जब हम डिफरेंट टाइप की ग्राफ्स को बनाएंगे तो हो सकता था कि यहाँ पे हमें इस तरह की सिचुएशन मिल जाती, हो सकता था कि हमें यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन मिल जाती. तो हम ये कहेंगे कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन. अब हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं कि जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में हमें 3 टाइप की सिचुएशन मिली. पहली सिचुएशन
हमें एक सिंगल पॉइंट मिल सकता है जिससे हमने यूनिक सॉल्यूशन कह दिया। सेकंड सिचुएशन, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो वहां हमें एक पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो L1 और L2 दोनों में होगा, इसका मतलब वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरी सिचुएशन, जब वो लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, तो जब वो दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी तो जो लाइन L1 का पॉइंट होगा वो डेफिनेटली L2 में प्रेजेंट होगा। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए, तो हमने स्टार्टिंग की कहां से? हमने पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझा, फिर हमने उसे ग्राफिकली अप्रोच, और लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से देखा। हमें तीन सिचुएशन मिली, यूनिक सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। चलिए, हमने जब उनके कोफिशिएंट्स, अगर हम बात करें कि हमारी लाइन L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। जब ये दो लाइंस या दो इक्वेशन हमें क्वेश्चंस में गिवन है और हमें पता लगाना है कि ये लाइंस पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी, तो हमने इनके कोफिशिएंट के बेसिस पे रिलेशन मिलता है कि जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होती है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मींस कोफिशिएंट्स ऑफ x का जो रेशियो है वो कोफिशिएंट्स ऑफ y के रेशियो के बराबर हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो हमें वो इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें वहां पे कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन मिल जाती है। और थर्ड सिचुएशन, जब तीनों ही रेशियो बराबर है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, तो हम ये कहेंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइन वाली सिचुएशन है। तो जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। जब x और y के कोफिशिएंट इक्वल का रेशियो इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं हो उनके, तो हमें मिलेगी वहां पे पैरेलल लाइंस, इसका मतलब हमें वहां पे नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन मिलेगी। और जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हमें हमारी लाइंस मिलेगी कोइंसिडेंट, इसका मतलब वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसके x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो जब इस लाइन L1 में x को हम 6 एज्यूम करेंगे तो y हमें मिलेगा 5, x को जब हम -2 एज्यूम करेंगे तो y बिकम्स 3। और इसी तरह से जब हम 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x, when x becomes 0 then y becomes 7, and when x is equal to 4 y becomes 1। और जब अगेन हम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें दो लाइंस मिलती है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 2,4 पे। चलिए गाइस, कुछ एमसीक्यूज की तरफ, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज the line x is equal to a and y is equal to b are first intersecting, second parallel, c overlapping and d none of these। so basically जब हम x is equal to a की बात करेंगे तो ये जो लाइन होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए, हम ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। तो मान लीजिए x एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो x बराबर a की जब हम लाइन के ड्रॉ की बात करेंगे, सॉरी, दिस इज x बराबर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x बराबर है जो कि y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। और सिमिलरली जब हम y इज इक्वल टू b की बात करेंगे, y इज इक्वल टू b, तो ये लाइन बन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज y ऑलवेज बी ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ठीक है। तो यहां पर हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, तो ये जो लाइंस होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग एट a, b। सिमिलरली अगर हम सेकंड एमसीक्यू की बात करें तो द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइंस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3
and 15x plus 21y is equal to k are coincident. तो अगर लाइंस कोइंसाइड करेगी तो 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू 3 अपॉन k. तो यहां से हमें 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/k. सो k becomes 9. सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 9. तो सिमिलर क्वेश्चंस ही हमसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. सो गाइज, अगर आपको इस चैप्टर को पूरे तरीके से, पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है तो हमारी जो एडोरा ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे भी मौजूद है और आईफोन स्टोर पे भी मौजूद है, आप वहां से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें ग्राफिकल अप्रोच मिलती है. सो गाइज, और इन सभी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप बने रहिएगा एडोरा के साथ. आपका मेंटोर, आपका मैथमेटिक्स टीचर गिरीश कुमार जैन फिर आपसे मिलेगा कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट. अभी हमें वो सारी चीजें कवर करनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एडोरा. बेसिकली जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको दो बेसिक पार्ट में हम पढ़ेंगे. पहला पार्ट होगा हमारा लाइंस, जो हमने आज देखा. लाइंस में हमने देखा कि किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिले, चाहे वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिले, चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली सिचुएशन मिले. और हमने देखा किस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं. तो चलिए गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.